समय के साथ चलना पड़ता है, वैसे क्या करें। नमस्कार, a very good evening to one and all present here. सबसे पहले आप सभी को फोरम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली के बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है और आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोग सभी टाइम निकाल कर इस प्रोग्राम में यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़े। आईटीसी राजपुताना शेरेटन और राजस्थान फोरम की ओर से डेजर्ट स्टॉर्म की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। डेजर्ट स्टॉर्म की जो श्रृंखला है उसमें हम लिविंग लेजेंड्स ऑफ द स्टेट को इनवाइट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ, उनकी सफ़र के बारे में और कैसे वो जहाँ तक आज पहुँचे हैं उसमें क्या क्या हार्डशिप्स रही उनकी लाइफ जर्नी की। डेजर्ट स्टॉर्म की ये श्रृंखला के प्रस्तुत करता है श्री सीमेंस। वी आर वेरी हैप्पी एंड इलेटेड दैट वी हैव विद अस none other than चरण शर्मा जी। A huge round of applause for चरण शर्मा जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी चरण शर्मा जी का कि आप यहाँ पर आएँ और स्टेज पर अपनी जगह लें। चरण जी से बात करेंगे हमारी सिटी के विनोद भारद्वाज साहब। आइए विनोद जी। An established name in the field of art whose paintings have reached the connoisseurs in different parts of the world,
Charan Sharma is a relentless voyager and an indigenous visionary. Born in the small temple township of Nathdwara in the 1940s, he began his artistic journey with the paintings of Lord Krishna, the reigning deity of his place of birth, and the subject of countless paintings done by the caste of Brahmin painters. Charan Sharma ji inherited the skill of painting from his predecessors. Socialized in the tradition of Nathdwara painting, Charan ji graduated in this art formally through a master's degree in drawing and painting from the University of Udaipur in 1974, and then pursued his interest further at the Sir J.J. School of Arts in Mumbai. Charan ji's brush rediscovered Buddha and the meditative ethos. The two exhibitions of his paintings in the present century, held in the years 2005 and 2007, focused on this theme, aptly titled as Enlightenment and Upasthiti, meaning being there. The third exhibition in 2010, under the title Anushthan, Invocation, Charan ji has distinguished himself through his unique style of expression, combining tradition with modernity and preserving his ingenuity. Most welcome, sir. Aapka bahut abhinandan. In conversation with him, we have Vinod Bhardwaj ji. Vinod Bhardwaj ji is a writer and journalist. He started his career as a creative director and copywriter. During this time, Bhardwaj ji had written on a range of issues in the numerous magazines. He also worked with Dainik Bhaskar as a feature editor for 18 years. He is the recipient of several awards, including the Jawaharlal Darda Smriti Lokmal Patrikarita Puraskar, the editor of two books, one on Kefi Azmi and the other on Hindi journalism. Bhardwaj ji is the General Secretary of the Progressive Artists Group. He is currently working on a novel titled Gali Qasim Jan, based on the Urdu poet Mirza Ghalib Sahab. I think ये book आ चुकी है आपकी, बिल्कुल. So a huge round of applause to the amazing two people who are sitting here. We will have a conversation for about 40 minutes. उसके बाद आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं चरण जी से. Thank you. कुछ उसका एडिटेड पार्ट हमने तैयार करा है ताकि उससे आपका कनेक्टिविटी और बढ़ेगी. This gallery, resembling perhaps a modern white box, is what the ancient sage Bharat would call a patra or vessel. It takes the shape of whichever character is poured into it. Today this glamorous gallery has turned into a sanctorum, a monastery, a vihara of the Buddha. Centuries ago, groups of monks used to chisel inhospitable stones to turn them into temples of the Buddha. But today, it is all the result of passion, perseverance and penance of one devotee of art. And he is Charan Sharma, a name, according to the celebrated Indian painter Francis Newton Sousa, is among the top 10 names of the landscape of Indian painters. But the journey to reach the pinnacle of the Indian art scene was not an easy one. It all started more than half a century ago, far away from the megapolis of Mumbai, in a small upcountry borough called Mewar, on the edge of the great Indian desert of Rajasthan. The town of Nathdwara, a name that literally means the door of the Lord. This little township, on the highway connecting the pink city of Jaipur to Udaipur, is known far and wide, and all because of its reigning deity, the colorful Krishna.
It is believed that when in the times of Aurangzeb, the temple town of Govardhan came under attack, the much revered idol of Srinathji was shifted to the safety of this tiny town. Since then, Nathadwara has become an important place of pilgrimage. This is where Charan Sharma was born, in a family of traditional painters. This is my small village, surrounded by small hills. You can see small white houses all around, speckled with a dash of green, yellow, pink, blue thrown in. These houses used to be the subject of my paintings. The tiny white matchbox-like houses, stacked over one another, can remind one of a Picasso painting. And the color added by the painted doors, windows, and the traditional clothes adds a strange touch of drama to this live canvas. I am on the roof. I have very fond memories of kite flying. Earlier, there were not so many houses here. Those were the days. These surroundings have inspired an artist like me a lot. Cubicle houses, open skies, beautiful birds of all kinds. I'm sure today's children don't enjoy kite flying as much as we did. I was very fond of flying kites and spent long hours on this. My grandfather had a studio just like Raja Ravi Verma. Around 10 artists used to work for him. Charan's grandfather, Khubiram Sharma, had become a legend in his lifetime, and no pilgrims would return without buying a picture of Srinathji from him. This tiny little shop had become a household name in areas far and wide. In a town where every second household was churning out painted pictures of Lord Krishna, and in an era where painting was considered a craft rather than an art, Khubiram's signed pictures had become prized possessions of connoisseurs. Khubiram Sharma passed on his legacy to his children, and they handed it down to their offspring. And thus, an art form was not only kept alive, but was also honed, fine-tuned, and mastered. I was destined to be a painter as I was born in a family of painters. I've got art in my blood. I think I did not have to learn the name of the color. I knew them all along. I could feel the colors. Thus, from an inherited art school at home, Charan made his way to a formal school to learn the greater intricacies of art. At Seth Mathuradas Binani Postgraduate College, Charan found his guru, Narendra Amin. His 3 years here proved to be a good starting ground for Charan to launch his long, arduous journey in the world of art. I had no understanding of modern art, but here I got my first introduction to it. This might have been my bench. There's no number on it, so I won't know. This room is empty right now, but those days, all of us used to spend 8 hours every day drawing. We used to sketch and paint on some subject or the other. Our teacher used to inspire us a lot. They had made it clear to us that it is not easy to learn drawing and painting. They insisted it required willpower to learn to draw and paint, and you needed inspiration within. There is a small river near Nathdwara. Its entire bed is embedded with pebbles of various sizes. These well-rounded, smooth shapes fascinated me. When I first started drawing them, people asked me, what are these round objects? It could have been anything. They asked me, how will I find the form in them? When I started making sketches with pen and ink, they started looking wonderful. चरण जी के कृतित्व से कनेक्ट होने का मौका मिला और उनकी बातें जब आप सुनेंगे तो अपन सबको आनंद आएगा। मित्रों,
इस नाथद्वारा से शुरू ही कला यात्रा को यहाँ कुछ चरण जी की ज़ुबानी सुनेंगे, कुछ सवाल जैसे पत्थरों की पहली सीरीज आई, ये कैसे पत्थरों पे दिमाग गया और कैसे ये बात समझ में आई कि पत्थर भी बोलते हैं या उनको भी पेंट किया जा सकता है? ये प्रश्न तो काफी लोगों ने पूछा भी था मुझे पहले भी। आवाज आ रही है ना? क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जो घर में इज्जत मिलती है ना, वो सबसे बड़ी इज्जत होती है। जो आज आपने मुझे यहाँ बुला के जो इज्जत दी है उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि बाहर तो बहुत लोग जाने अनजाने में इज्जत कर देते हैं, लेकिन घर में जो इज्जत होती है वो जानकार की करते हैं। तो वो सबसे बड़ा, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अब इनका प्रश्न है कि मैं पैदा ही चित्रकारों के घर में हुआ, मतलब वो जन्म कुटी में ही मेरे को कला का वो मिल जाता था। लेकिन जब मैंने एमए किया ड्राइंग में, तब मुझे पता चला कि आर्ट एक कंटिन्यूटी है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैंने बोला कि ये तो सब बना ही रहे हैं, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैं नदी का काफ़ी मुझे तैरने का भी शौक था, तो नदी में वो मुझे गोल गोल पत्थर बड़े प्यारे बनते, तो मैंने उनको लेके अपना सब्जेक्ट चुना। तो उस सब्जेक्ट के पीछे जब मुझे चीज़ मालूम नहीं थी, तो मेरी मम्मी ने वो पेंटिंग देखी तो वो बोला तो शालिग्राम बना रहा है। तो मैं बोला कैसे है? बोला ये पत्थर जो गोल गोल होते हैं ना, इनकी बहुत लंबी यात्रा होती है। इतनी लंबी यात्रा होती है कि करोड़ों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं वो गोलाई पकड़ने में, गोल गोल बनने में। कहाँ कहाँ वो घिसते हैं, कहाँ गिरते हैं, कहाँ पड़ते हैं, कहाँ पड़े रहते हैं। तो वो शालिग्राम एक अनुभव है, तो तेरे पत्थरों में एक अनुभव झलकता है। तो वो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, मतलब जो आर्ट का मुझे मिला, वो मेरी मम्मी ने दिया कि शालिग्राम, तो मैं इनको पेबल्स कहता था। तो मेरे लिए वो शालिग्राम ने, और उनको मैं अपने विंडो के थ्रू देखता था, तो थ्रू द विंडो। तो एक जमाना ऐसा है कि बॉम्बे में सब क्यूबिकल, सब खोखे घरों में रहते हैं, बॉक्स के घरों में, जिनका विंडो नहीं होती वो बोलते चरण जी की पेंटिंग लगा। पत्थर भी दिखेंगे और खिड़की भी दिखेंगी, इसलिए पत्थर की कहानी इस वहाँ से शुरू हुई। मेरे ख्याल से इस पे बहुत मशहूर पेंटर सूजा ने एक आर्टिकल भी लिखा था पत्थरों के, उस पे दमयुग में काफी पहले। तो उन्होंने लिखा कि पत्थर भी एक सब्जेक्ट हो सकता है क्या? मैं भी शुरू में बनाऊंगा कि पत्थर, देखो हर आर्टिस्ट का रहता है कि कौन खरीदेगा, कौन देखेगा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं होती है। आर्टिस्ट क्रिएशन करता है तो उसके पीछे उसका मूल भाव 2-3 तरह का रहता है। तो लेकिन वो पत्थर मैंने बोला ना, वो शालिग्राम में यात्रा है। तो सूजा ने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा, अभी मुझे वो पूरा याद नहीं है, लेकिन दरमियान में काफ़ी 2-3 पेज का एक आर्टिकल था। तो उन्होंने बोला कि पत्थर सब्जेक्ट हो सकता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ, वो मैंने पढ़ा था, मेरे पास अभी भी वो शायद रखी है कटिंग उसकी। हाँ, लेकिन ये शालिग्राम से फिर अचानक कुछ बदलाव आता है पूरे उसमें, अपनी रचना प्रक्रिया में, और वो हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। और वो दुनिया शायद कठपुतलियों की दुनिया है। नहीं, उसके बाद में जैसलमेर गया था। जैसलमेर के बाद जितनी भी हवेलियां हैं उनकी, अजमेर, अपने बीकानेर के पास में खानू और इस तरफ डूंग और सब, तो वो मुझे बड़ी अजीब लगी। पुरानी पेंटिंगें हैं, हवेलियाँ कोई अधूरी गिरी हुई है, कोई कहाँ है, कैसे उसके गुंबद हैं, तो वो मेरे जहन में आई। लेकिन मैंने उनको अलग ढंग से पेश किया। तो मैं बदलता रहता हूँ, मैं मतलब अपना रूप भी बदलता हूँ, कभी दाढ़ी रखता हूँ, कभी बाल रखता हूँ। वैसे मेरी पेंटिंगों में भी बदलाव आता है। तो वो बदलाव आया, फिर रूइंस बनाना, मतलब खंडरों में जाके
तो उदयपुर के पास एकलिंग जी का टेम्पल है, वहाँ एक सास बहू का मंदिर है, वो खजुराहो के टाइम का मंदिर कहा जाता है। वहाँ मैं स्केच करने जाया करता था, वो मेरी पेंटिंग का सब्जेक्ट बन गया और वो इतना सुंदर सब्जेक्ट था। एक तो मेरे पास में था, जाके बैठे रहो, कोई मना नहीं हो, सुनसान जगह थी, वहाँ जाके स्केच करो, और वो काफ़ी दिनों तक मैं उसमें उलझा रहा। फिर इसी राजपूताना होटल में मैं एक बार ठहरा था, तो पपेट शो हो रहा था नीचे। हर रात को एक पपेट्स होते थे, फोल्डर्स वगैरह काफ़ी आते हैं। वो मैंने देखा तो वो जैसे ठुमका लगाती, ये लगा तो मुझे अजीब लगा, मतलब पपेट देख के मुझे लगा कि उनके गहने, उनकी ड्रेस, उनका वो देख के वो जीवंत मुझे लगने लगा। तो फिर मैंने वो पपेट वाले को बोला कि मैं आपके घर आऊँ क्या, देखूँ क्या, आप क्या? बोलता पपेट हमसे रात को बात करती है, ये करती है, हमारे साथ सोती है। तो उसकी बातें इतनी वो थी, फिर मैंने अपने पेंटिंग में पपेट्स वाटर कलर में करने शुरू किए और पपेट सीरीज इतनी मैं, क्योंकि पपेट को मैं स्केच नहीं कर सकता था उसके मोमेंट, तो मैं फोटोग्राफी की और उनको अलग अलग रूप दिए। एक पपेट मैंने बनाई, मैं आपको दिखाऊंगा, वो प्रेग्नेंट पपेट है। उसका पहनावा ऐसा लगा कि उसको बच्चा होने वाला है, वो मतलब दोनों लव आपस में, मेल और फीमेल, और वो इतने जीवन मतलब करेक्टर लगते थे ना। और उस पर फिर बाद में मैंने एक फिल्म भी देखी थी कि रात को वो म्यूजियम में सब जिंदा हो जाते हैं और सुबह आके अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। एक आपने ऐड भी देखी साड़ियों की दुकान की कि सब वो रात को सब साड़ियाँ वाली औरतें जो मम्मी वो होते हैं मूर्ति हैं, वो सब जीवंत हो जाती है, कोई नहीं होता है तो दिन भर वो खड़ी रहती। तो मेरे मन में भी तो वो मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट था। मुझे अभी अचानक मुजफ्फर वारसी साहब का एक शेर याद आया जो मुझे बहुत मौजूद लगता है कि चरण शर्मा की जो पूरी कला यात्रा है उसमें शेर कुछ यूँ है कि मैं भी बिक जाऊँ अगर रस्म ये डाली जाए, सर तो नीलाम हो पगड़ी ना उछाली जाए। तो चरण शर्मा ने जिस तरह से राजस्थानी पगड़ी को मुंबई में जाके संभाला, और संभाला ही नहीं बल्कि उस पगड़ी की इज्जत रखी, और आज हम लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे एक राजस्थान का एक आर्टिस्ट मुंबई में अपनी वो मुकाम बना चुका है जो बहुत मुश्किल से हासिल होता है। मैं थोड़ा सा बैक उसमें जाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि जब मुंबई गए तो स्ट्रगल कैसे रहा, मतलब इतना आसान तो नहीं था उस समय? नहीं, स्ट्रगल तो नहीं था क्योंकि बॉम्बे से हमारी फैमिली काफ़ी परिचित थी, क्योंकि नामद्वारा के आधी बॉम्बे आती है, जाते हैं तो लोग काफ़ी पहचान वाले थे, तो इतना, लेकिन रहने को वो एक हर एक के साथ होना भी चाहिए। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी मम्मी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट है, वो जे में पढ़ती थी, तो बोला दो घर बिगड़ते बिगड़ते अच्छा हुआ एक घर बिगड़ा। तो एक तो वो शालीग्राम वाली बात और एक दो घर वाली बात मेरे को जहन में इतनी घुसी हुई है कि इतने मैच्योर कमेंट्स, मेरी मम्मी को चौथी या पांचवी पढ़ी हुई होगी थी, तो लेकिन वो इतने मास्टर कमेंट्स मैंने मेरी जिंदगी में अभी तक किसी से सुने नहीं कि दो घर बिगड़ते बिगड़ते एक घर बिगड़ा, मतलब दो अगर कभी मिल जाए तो हस्बैंड वाइफ जखट मिल जाए तो कैसे माहौल होगा। तो बॉम्बे मेहनत वालों के लिए बहुत कुछ देता है। बॉम्बे में प्यार भी बहुत मिलता है, पैसा भी मिलता है, और लोग कला की कदर भी करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ अगर कलेक्शन में होगी तो बॉम्बे में होती है। बड़े बड़े ऑक्शन हाउस, बड़े बड़े ऑक्शन बॉम्बे में होते हैं। हुआ ऐसा कि मैं जब कॉलेज में था तो हमारी एक टूर होती थी, एक एजुकेशन टूर, तो मेरे सेल जो थे सर थे उनके साथ हम बॉम्बे गए थे। उन्होंने बेंद्रे के घर में, हुसैन अपने हैबर के घर में लेके गए, स्टूडियो दिखाया, फिर वो जहांगीर में भी लेके गए। तो जहांगीर में उस समय रजा साहब की एग्जीबिशन चली थी,
वहाँ बाहर जहांगीर के बाद सीढ़ियाँ हैं, वहाँ बैठ के हम सोचे यार हमारी भी एक दिन एक पेंटिंग यहाँ लगेगी तो कैसा रहेगा। वो एक सपना ऐसी बात बात में निकला था और वो सपना इतना साकार हो गया कि विद्या जी को मालूम है, हमने टटफन की एग्जीबिशन, मतलब वहीं सो के कैनवास पे सो गए, अखबार बिछा के सो गए जब ये अलाउ था। तो इतना स्ट्रगल करते थे, वहीं कपड़े चेंज किए और दिन भर वहीं गए, कहीं भी खाना वाना खा लिया, मतलब इतने कम पैसों में और इतने अच्छा शो करते थे। लोग आते थे तो बोलते राजस्थान के लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी में राजस्थान के लोगों को, आर्टिस्टों को थोड़ा सा इतना नहीं मिला है, लेकिन आज की तारीख में मैं जब देखता हूँ तो हमारा इस प्रदेश का काम मतलब कला के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा है। एक बार राजस्थान के आर्टिस्ट के लिए तालियां। ये सिलसिला जब शुरू हुआ पेंटिंग्स की एग्जीबिशन वगैरह का, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला राजस्थानी काम को लेकर? नहीं, शुरू में हम किसी को ज़्यादा जानते नहीं, तो ये इनविटेशन जो जहांगीर की एक लिस्ट होती थी उसमें भेज देते थे। कोई आया, देखा, खड़े हो जाते थे कि बायर तो नहीं है या ये तो नहीं है। क्रिटिक आते हो तो ऐसे डर जाते थे, जैसे नागकर्णी थे, एस वासुदेव था, AR कनंगी थे, तो हमको ऐसा लगता था भगवान आ गए। और एक इतना सा पेपर में आ गया होता तो हम उसको जेब में लेके घूमते थे। मुझे याद है प्रयाग शुक्ला ने मेरे बारे में दिनमान में एक 4 लाइन लिखी थी मेरे ग्राफिक के बारे में, जब मुझे राजस्थान ललित कला का अवार्ड मिला था। वो मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कितने दिन मेरे जेब में रख के हर एक को दिखा प्रयाग जी ने मेरे बारे में लिखा। मतलब वो जो प्रोत्साहन जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। अब ये जो बोल रहे थे ना, वो जो प्रोत्साहन हमको मिला बॉम्बे में, वो मेरे लिए बहुत कामयाबी का सबक रहा। और बाद में तो एक दिन ऐसा आया कि अमिताभ के साथ भी मतलब पेंटिंग करते हुए, पेंटिंग दिखाते हुए, मतलब बॉम्बे में कोई ऐसा इंडस्ट्रियल या ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ मेरी पेंटिंग नहीं है। तो अभी मैंने बहुत बड़ी एक पेंटिंग HN हॉस्पिटल प्रार्थना समाज में जो अंबानी का है, वो पेंटिंग बनाने में मुझे 3-4 साल लगे। लेकिन उसके बनाने के समय मुझे लगा कि इनको पेंटिंग की समझ नहीं होगी, क्या होगा, क्या बनाना है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बहुत खुले मन से कि नीता अंबानी, मैं नीता भाभी बोलता हूँ उनको, नीता अंबानी को इतना नॉलेज है उसके बारे में कि मुझे हॉस्पिटल में प्रेयर रूम की तरह मेरी लॉबी होगी और उसमें हर एक आदमी आके प्रेयर करे अपने पेशेंट के लिए, ऐसा तुम कुछ बनाओ। अब वो इतना बड़ा चैलेंज था तो महीनों निकल गए। वो बोला तो क्या बनाया, मैं स्केच करके ले जाता था, नी चरण ऐसे कलर होने चाहिए। आदमी आए और हॉस्पिटल में बैठे तो उसको लगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब हॉस्पिटल में जाने ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। तो वो लॉबी में जो पेंटिंग लगी और उसको बनाने में, उसकी समझ में उनका काफ़ी सहयोग रहा। मेरे पास अभी वो पेंटिंग है नहीं है, आपको फोटोग्राफ दिखाता था मैं। वो मेरी लाइफ की सबसे एक जुगलबंदी वाली पेंटिंग है, जिसमें सब धर्मों का मैंने वो लिया है और पूरा पंच तत्व का वो लिया है। तो ये जो बोलते हैं ना, बॉम्बे में बढ़ते 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 आप आसमान की तरफ जा सकते हो, मतलब आप अंटालिया की तरफ भी घुस सकते हो। आप में ताकत होनी चाहिए और आप में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन की जब 70 साल पूरे हुए थे और 70 पेंटिंग्स वहाँ पे लगाई गई थी, उसमें भी तो शायद आपकी एक पेंटिंग थी। मैंने मॉन्क बनाया था, तो अमित जी ने मेरे को पूछा कि ये तो बुद्धिस्ट वो है। मैंने कहा अमित जी, अमिताभ जी, बुद्ध का एक नाम अमिताभ भी था। तो उसको लेके मैंने पूरा वो किया था। बहुत कुछ मतलब उनके 70 साल में हम लोग, उन्होंने काफ़ी बड़ा एक फंक्शन किया था, करीब 80-90 आर्टिस्टों की पूरी बुक भी निकाली थी। और वो जया जी का आइडिया था एक्चुअली। अमिताभ को तो फुर्सत नहीं थी, लेकिन जया जी ने एक ऐसी चीज़ देनी चाहिए कि जिंदगी भर याद रखे। तो हर एक आर्टिस्ट ने अपने ढंग से अमिताभ को देखा था। वो भी एक कहानी थी बहुत बड़ी, उसमें जानने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे लोग।
नहीं, वो एक पब्लिसिटी है, ये है, वो आर्टिस्टों को बुलाना, वो फिर वो पेंटिंग वो उन्होंने खरीदी और फिर क्या किया, उसको कहाँ लगे कुछ पता नहीं। पेंटिंग म्यूजियम में होती ना बहुत अच्छी लगती है, कहीं बड़े जगह होती ना तो आर्टिस्ट को अच्छा लगे। घरों में जाके पेंटिंग चिपक जाती ना, उसको 4 लोग देखते हैं खाली, तो वो मजा नहीं आता। अच्छा, फिर इसके बाद जब एक बदलाव आता है तो फिर बुद्ध एक साथ आ जाते हैं इसमें पूरी अपनी। हाँ, फिर अचानक क्या हुआ, मैं विपासना करने गया था इगतपुरी में गोयनका जी का। आपके जयपुर में भी है शायद विपासना का। तो मेरा लग देखिए कि गुरुजी ने मतलब खुद 5-6 लोगों को बोला कि मेरे से मिलने आओ, तो मेरा भी उसमें नाम आ गया। तो मैं गया मिलने। तो आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं चित्रकार हूँ। बोला क्या बनाते हो? मैं कहा ऐसे ऐसे। बोला एक काम करो, तुम अभी यात्रा करो बुद्ध की, बुद्ध जहाँ जहाँ गए वहाँ जाओ और फिर एक दिन आके मिलो। उन्होंने घर का एड्रेस दिया, जू में रहते थे वो। मैं इतने बड़े गुरुजी से मिला, अपना आप में बहुत बड़ा था। तो मैं, मेरे साथ विश्वनाथ सचदेव करके नवभारत टाइम्स के एडिटर थे, उनको लेके गया कि आप चलो और मेरे को जरा समझाओ क्या। एक तो उन्होंने मुझे सबसे अच्छा मंत्र दिया, सबका मंगल हो। मतलब आपके पास में ये दुखी है तो मुझे भी थोड़ा दुख तो होगा, तो सबका मंगल हो की जो कामना थी ना, वो मैंने बुद्ध में देखी। और फिर मैं श्रीलंका, जापान और इस तरफ जहाँ जहाँ बुद्ध हिंदू, वहाँ मैं गया और अपने ढंग से बुद्ध को बनाने लगा, उनको देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। और अब तक वो यात्रा चल रही है और अब यात्रा थोड़ी बदल गई और मैं अक्षरा पे आ गया हूँ। अक्षरा मेरे नए पेंटिंगों का सब्जेक्ट है, खाली अक्षर। क्योंकि अक्षर एक डांस करती हुई फॉर्म है। एक आप देखेंगे तो अक्षर जो देवनागरी लिपि के अक्षर हैं वो बड़े रिदम वाले हैं, उनको मैंने अपनी पेंटिंगों में लिया है। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट बोलिए कि जो बोलिए वो करता रहता हूँ। एक मुझे याद है कि जब यहाँ एक जयपुर में आर्ट फेस्टिवल हुआ था, एक मिनट हो तो ये अक्षरा की पेंटिंग जब मैंने किसी ने देखी तो जियो नॉलेज, इनका अंबानी का बन रहा है, तो नॉलेज के ऊपर जब उन्होंने ये मेरी पेंटिंग देखी तो उन्होंने बोला मुझे इतनी बड़ी खाली अक्षर के ऊपर पेंटिंग आप जो बना रहे हो वो बना के दो। क्योंकि उनको अक्षर देवनागरी के बच्चे भूल गए, मतलब सब ABCD वो सब उनको वो दिखाते ना, तो हम क ख ग ण जो भी है ना, उनको आप रूप देखो, उनको अलग अलग लिखिए। और जो पुराने लोगों ने जो लिखा है ना, उसको वाकई में संस्कृत और जैसे उनकी रिदम है वो बड़ी काबिल तारीफ है। आप अगर एक दिन प्यार से देखोगे तो वो ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये डांस करते हो। आपने उस पर एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था और मुझे अभी भी याद है। हमारे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी वो पेंटिंग देखी होगी कि जवाहर कला केंद्र का जो शिवग्राम है, वहाँ एक पेड़ था पीपल का जो बीच में वहाँ पे शिवग्राम में लगा हुआ है। उस पेड़ पे इन्होंने बीच में कैनवस रखा और एक लेटर बॉक्स उसमें इन्होंने पेंट किया। और वो पेड़ की जो बीच का हिस्सा था जहाँ वो कैनवस आ रहा था, उससे उसको इस तरह से एक आकार किया कि जैसे वो पेड़ उसमें से निकल, उस पूरा पेड़ दिखाई दे रहा, कैनवस बीच में है और उस पर वो लटका हुआ है। वो आइडिया कैसे आया था? ये आर्ट समिट की बात कर रहे हैं, जयपुर में आर्ट समिट हुआ था। एक्चुअली आर्ट कैंप और आर्ट समिट और ये सब होते हैं, तो मैंने सब आर्टिस्टों को देखा है, मैं भी उसमें से एक हूँ, लेकिन हम रिपीटेशन बहुत करते हैं। रिपीटेशन का मतलब है कि जो रटी रिटाई चीज़ें वही आके बनाते हैं। तो बेटा मैं सोच रहा था, तो मेरे को पेड़ बार और मैंने पोस्ट बॉक्स के ऊपर भी बहुत पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि जब ईमेल और ये सब व्हाट्सएप ये सब आया तो पोस्ट बॉक्स का मुझे थोड़ा लगा हुआ कि अपन रक्षाबंधन की राखी भेजते थे तो उसको देखते थे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, मतलब उसमें डालते हुए आदमी 2 बार उसको महसूस करता था। अब बेचारा वो बहुत लोनली फील करता है। तो एक तो वो लोनलीनेस दिखाने के लिए और एक पेड़ का तना
वो मेरे कैनवास पे आ गए थे। और लकीली उस दिन वो एक्स चीफ मिनिस्टर राजस्थान के वसुंधरा जी, वो देख के छक बोले कि तुम जयपुर में कुछ करो, कुछ इस तरह का। मैंने कहा लेकिन एक वो एक्सपेरिमेंट था और वो बड़ा मतलब हो गया। अभी उसके पीछे कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर बनी थी वो पेंटिंग। ये पूरे प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं कि मतलब एक बदलाव तो लगातार आते रहे पेंटिंग्स में, लेकिन बीच बीच में चरण शर्मा ने एक चीज जो एक नॉस्टैल्जिया जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं नजर आता हर पेंटिंग में, हर सब्जेक्ट में। ऐसा नॉस्टैल्जिया जो मतलब बीता हुआ है उसको कहीं ना कहीं वापस लाने की एक प्रक्रिया है दिमाग में। ये इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह से ऐसे है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं आपको बताऊं, लेखक हैं, न्यूज़पेपर के आर्ट क्रिटिक होंगे या संपादक लोग होंगे, और मैंने धर्मयुग में 2 साल काम भी किया था धर्मयुग भारती जी के साथ। तो उनकी कनुप्रिया मतलब थोड़ा साहित्य को पढ़ने की भी बहुत रुचि रही है। तो मैं जैसे हर लेखक अपने पात्र बदलता है, अपना नोवेल को अलग अलग ढंग से लिखता है, अलग करता है। मेरे पात्र बदलते रहते हैं और ये रहते हैं, लेकिन आर्टिस्ट वही रहता है, चीजें वही है, लेकिन मतलब परिदृश्य बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया का वही तो एक तरीके से हुआ ना। कभी इस पूरे प्रोसेस में कभी ये मन किया कि एक बार नाथद्वारा की जो शैलियाँ हैं अपनी, जिसमें श्रीनाथ जी को पेंट किया था, श्रीनाथ जी को कभी आपने उस तरह से नहीं बनाया मॉडर्न उसमें? नहीं, मैंने बनाया है, श्रीनाथ जी काफ़ी बनाया है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी बताना नहीं चाहिए, मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी 5-6 श्रीनाथ जी के, वो कोई श्रृंगार वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मैंने अपने ढंग से उनको किया है। और वो सब पेंटिंग इनके कलेक्शन में, अंबानी के कलेक्शन में, कि उनको श्रीनाथ जी से बहुत ज़्यादा लगाव है। मतलब वो जाते रहते हैं और उनको बोले अभी 5G भी वहीं से चालू किया है कुछ, तो उनको जब भी मतलब वो बोलते हैं ये श्रीनाथ जी हमको अलग ही लगते हैं। मतलब वो कृष्णा के रूप में मैंने वो गायें भी मैं अलग बनाता हूँ। मतलब अब ये क्यों बनाता हूँ, क्या जरूरत नहीं माइक। आप बहुत, सबसे पहले तो आपको बधाई, राजस्थान फोरम में आप आए और इतना अच्छा आपके साथ इंटरव्यू हुआ। और हमारे भारद्वाज जी भी बहुत ही कमाल के पत्रकार रहे, तो आप दोनों को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत। मेरा जो सवाल है वो इतना सा है कि आपकी जो जन्म हुआ वो ट्रेडिशनल एक आर्ट थी का वहाँ काम हुआ करता था, पेंटिंग हुआ करती थी, वहाँ से निकलकर आपने और एक समसामयिक कला की तरफ अग्रसर हुए, कुछ अलग जो भी मन में आया वो आपने किया। तो आज के परिवेश में आप समसामयिक कलाओं को और ट्रेडिशनल आर्ट को किस रूप में देखते हैं? आपका क्या नजरिया है? नहीं, आप वो कला को आप ऐसे देखोगे तो ट्रेडिशनल होता ही है और मॉडर्न होता है। बदलाव कुछ भी नहीं। जो कल ट्रेडिशनल था, आज आप मॉडर्न जो जिसको बोल रहे हो आधुनिक कला, समसामयिक कला, वो कल ट्रेडिशनल हो जाएगी। और ट्रेडिशन से हम लोग निकले हुए उन्हीं फॉर्म्स को, उन्हीं चीज़ों को हम अपने ढंग से देख रहे हैं। मतलब रटी रटाई बोलते ना, उस पगडंडी पे नहीं चल के थोड़ा अपने रास्ते बना रहे हैं। और इसका मैं आपको राज बताता हूँ कि मैं जब एमए में पढ़ता था तो मेरा घर कॉलेज के सामने ही था। तो कैनवास हाथ से कसना, उस समय पैसे नहीं होते थे, ईमानदारी से घर वाले भी इतने पैसे नहीं देते थे। आटा का डब्बा, घी का डब्बा ले जाओ, खाओ पियो और काम करो। तो फिर तो विद्या, सभी रसन काटी, शेलचर, इतना से रूम में सब लोग आके रात को रह जाते थे, कहीं भी सो जाते थे। और हम लोग कला पे चर्चा, मतलब हमारे में जुनून था। और सच्ची बोलो तो मैं विद्या का मतलब चेला तो नहीं हूँ, लेकिन फॉलोअर्स, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि उस जमाने में भी हिस्टोरिकल ब्लैक एंड व्हाइट इनकी जो ड्राइंग आपने देखी होगी, ये कर हम बोलते हैं क्या तू घिसता रहता है चाकू।
लेकिन उसमें से जो शेड निकलते चारकोल के, मतलब ग्रे से लेके व्हाइट तक, मतलब जो हमको काफी सीखने को मिला है। वो ट्रेडिशनल, और इसको हम ज्यादा उलझेंगे तो कोई मतलब नहीं। ट्रेडिशनल ही हमको आधुनिक सिखाता है, कोई उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। एक समय ऐसा आता है कि आदमी जो काम करता है या जिसमें वो क्लीन रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसको बियॉन्ड में झांकने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं ये यहाँ तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, और उसके बाद मुझे कुछ अलग ढंग से, एक अनूठे ढंग से, एक नई तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये कला के लिए मैं समझता हूँ एक उत्थान भी है। अभी आपने जो ट्रेडिशनल बात, मुझे एक बात याद आ गई, बीच में बोलता हूँ। आपने मिनिएचर पेंटिंग को कभी ध्यान से देखा होगा। उस समय कैमरा नहीं होता था, लेकिन मिनिएचर आर्टिस्ट इतना विजुअली इतना तगड़ा था कि उसको रूम में खाना बन रहा वो भी दिख रहा है, बाहर पेड़ भी दिख रहा है, गाय भी दिख रही है। मतलब जो क्यूबिज्म पिकासो ने बाद में देखा, लेकिन हमारी मिनिएचर पेंटिंग ने उसको बहुत पहले देख लिया है। जी जी। मतलब मकान में क्या हो रहा है अंदर, वो भी आपको चित्र में दिखाई देगा, और बाहर क्या हो रहा है। मतलब पूरा इतना 3D मतलब इफेक्ट वो कहाँ से लाते थे, क्या करते थे, उनकी मतलब विजन देखो आप। तो वो भी एक आधुनिक चीज थी। सही कहा, शुक्रिया। बैठ के बोलता। हाँ, आराम से। चरण जी, आप लोगों की बात में काफ़ी सारी बातें तो आ गई, लेकिन कुछ और मैं ऐड करना चाहूँगा जो मुझे जानकारी है। मैं पहली बार जहांगीर आर्ट गैलरी में 87 में एग्जीबिशन करने गया था। तब मैं चरण जी का नाम नहीं जानता था, और आपके फादर इन लॉ मेरे शो में आए थे, इंदर शर्मा जी। और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दामाद हैं और मेरी बेटी है, वो पेंटिंग करते हैं, तो अगली बार आप जरूर मिलना। तो उनके थ्रू मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी, और वो मुलाकात जारी रही। और मेरे लगभग सभी शो में, 87 के बाद हुए जितने भी शो में आप लगभग आए, और मुझे आपकी वो नीली पर्पल कलर की पहली गाड़ी शायद होगी, तो आपने मुझे घुमाया। तो वो जो सरलता रही, और जयपुर के, राजस्थान के लोगों के लिए वो छूट रही थी इस बात से, तो वो चरण जी से हमेशा स्नेह मिलता रहा है यहाँ के लोगों का, वो भाग अधूरा रह जाता। तो मैंने कहा याद दिलाऊँ आपको, धन्यवाद। मैंने वो नीली गाड़ी ओपल गाड़ी थी, ओपल बहुत मुझे गाड़ी का मॉडल याद नहीं है, जर्मन गाड़ी थी। और मुझे गाड़ियों को, मेरे बेटे को भी शौक है, मेरे को भी शौक। मेरा बेटा तो इनके पास शौक में वो गाड़ी पेंट करता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। मैं इसी तरफ में शामिल करना चाहता हूँ। मेरे जब बॉम्बे में पहला शो था, तो इन्होंने मुझे चला के फ़ोन किया, अपने घर बुलाया, मुझे गाइड किया कि कैसे करना चाहिए शो, कैसे क्या लोगों को इनवाइट करना है। उन्होंने गाइड किया, और मेरे हर शो में आप हमेशा उपस्थित होते हैं और मुझे मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। गोपाल जी ऐसे चढ़ा रहे हैं मेरे को। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया। इनके मतलब बोलते हैं ना, सरस्वती इनके हाथों में बैठी हुई है, तो ऐसी बात नहीं। इनकी बड़प्पन है। ये बॉम्बे में देखो, हम लोग, आपको मालूम नहीं है कि बॉम्बे में आज से नहीं, हमारा टकमन का शो होता था। टकमन एक संस्था है, उसमें 8 आर्टिस्ट एक रूम में, कहाँ जाएंगे, पैसे होते नहीं थे। तो मेरे घर में आप एक बड़ा कुकर लाए, उसमें खिचड़ी बनाई, सबने खा ली, और टेरिस पे जाके सो गए। कोई बिछाने का नहीं, ओढ़ने का नहीं, क्योंकि उसमें वो साधन भी नहीं थे। लेकिन वो जो मजा था ना, वो चीज़ मुझे मालूम है कि आर्टिस्ट बॉम्बे में आता है ना, तो उसको पाँव जमाने के लिए जगह चाहिए। जैसे आपका नेहरू सेंटर में शो था, आपका सेंट्रो होटल में कुछ बड़ा शो था, तो मतलब इतना काम लाके आदमी डिस्प्ले करेगा। कोई 2 शब्द प्यार से बोल दे तो उससे बहुत मतलब सराहना जो करते हैं ना, तो उसके मायने अलग ही होते हैं। तो वो तो हर एक आर्टिस्ट के लिए मेरा घर खुला रहता है। कोई और सवाल?
विद्या कुछ पूछना चाह रहा है, चुपचाप बैठा है। मैं विद्या की गाइडेंस मिलती रहे तो बस हम लोग खुश हैं। आपने अभी चरण को सुना है और हम दोनों की कैसी क्या स्थिति रही होगी वो आप महसूस कर सकते हैं। हम जी और आपकी स्थिति में नहीं है, और क्योंकि ये मेरे से 3-4 साल ही बाद में फील्ड में आए, पर हमें नहीं लगा कि हम इतने आगे पीछे रहे, साथ ही रहे हैं। जिस रोज ये एडमिशन लेते हैं सबसे पहले शायद नहीं मिला उनसे, और मैंने उनको साफ बोल दिया था कि तुम नाथद्वारा से आ रहे हो और तुम्हें दुनिया में अपने ढंग का काम करना है, बस इतना सा ध्यान रखना। और वो इसने प्रूव किया। इतनी एग्जीबिशंस, इतने कलेक्शन में काम, ये आर्ट फील्ड के अंबानी है। और राजस्थान का डंका इन्होंने देश विदेश में बखूबी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चरण के जो काम अभी उन्होंने बोले हैं या जो अभी सीरीज की बात की है, शायद उनकी पूरी यात्रा के 1/4 भी नहीं, बहुत छोटी है। मुझे मालूम है ये एक स्केच करते थे, उस ड्राइंग से उनको फर्स्ट स्टेट अवार्ड मिला, और इसके बाद में अनवरत ये कितने अवार्ड ले चुके हैं, कितनी जगह सम्मानित हो चुके हैं, कितनी पत्रिकाओं ने उनको मुख पृष्ठ पे छापा है, ये हम सभी जानते हैं। इसका नाम है चरण शर्मा। ये अमिताभ बच्चन से कम नहीं है, और काम में काम की दृष्टि से कह रहा हूँ, अमिताभ बच्चन से आर्ट फील्ड में कम नहीं है। इतना काम किया है, इतना हम लोगों को सहयोग भी किया है। राजस्थान के हर आर्टिस्ट के साथ में उसका डायरेक्ट रिश्ता रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हमारे म्यूजिक में भी हैं, फिल्म्स में भी हैं, थिएटर्स में भी हैं, पर राजस्थान के आर्टिस्ट को वहाँ डायरेक्ट सपोर्ट करने की स्थिति बहुत कम लोगों की है। पर चरण शर्मा एक एक्सेप्शन है। आज भी कोई यंग आर्टिस्ट जाता है तो ये बहुत खुश होता है, मेरे यहाँ से है और मुझे इसको सपोर्ट करना है। उसका खाना, उसका सारी व्यवस्थाएं, बायर से मिलाना, आर्ट क्रिटिक्स से मिलाना, ये सब चरण शर्मा करते हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और हमेशा स्वस्थ रहें और खूब काम करें। अक्षर जो हैं उनको बहुत आगे तक लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यासागर जी। और आपने एक्चुअली सही बोला, ये उस अपनी विधा के अमिताभ बच्चन हैं, अंबानी हैं, और हमारे लिए चरण जी हैं। जोरदार तालियां हो जाए चरण शर्मा के लिए। हेलो, अच्छा आपने मेरी सब तारीफें सुन ली, दूसरी बात नहीं बोलूंगा। अच्छा अब राजस्थान की हालत में बताता हूँ। यहाँ एक एकेडमी, राजस्थान एकेडमी, इतनी बढ़िया उसकी हालात है। दूसरे स्टेट में कहीं अकादमी इस तरह से नहीं है, काम नहीं कर रही है। लेकिन उसमें बाहर के आर्टिस्टों का सहयोग लेना उसके लिए शायद पाप है। क्या पता नहीं उसमें क्या के वो हमको राजस्थानी मानते ही नहीं। अब तो राजस्थान के आर्टिस्टों से सहयोग लेना भी पाप नहीं, उसको यहाँ रह रहे उनके लिए उनको भी इसी तरह से देखा जाता है। नहीं, इतनी बड़ी संस्था है जिसने रामनिवास बिरला के जमाने में वो संस्था ने जन्म लिया, और वो सर्टिफिकेट मिलता था। रामनिवास जी खुद आर्टिस्टों को इतना सहयोग, दिल्ली में जाके मेरे घर में रहो। हमको मालूम है एशिया 72 जब हुआ था एक ट्रेड फेयर, तो आर्टिस्टों को क्या काम देंगे, तो हमको बोला तुम हवा महल बना दो इधर राजस्थान पेविलियन में। 20 आर्टिस्ट राजस्थान का बीकानेर हाउस में ठहराए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, 100 रुपया 200 रुपया रोज देते थे, और बोला रात दिन। और हम लोग पहाड़ पे वो बोलते ना बांध के काम करते थे। हमको नॉलेज नहीं था कि इतना बड़ा हवा महल कैसे बनाएंगे, लेकिन विद्या में मतलब कौन नहीं था और धूल लग गई थी हमको कि कुछ बनाना है। और वाकई में सब लोग देखते रह जाते थे कि वाह क्या मतलब रियल हवा महल बना दिया हमने। तो मेरा एक निवेदन है कि आप लोग भी राजस्थान की ललित कला अकादमी को जरा
सचेत करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विद्यासागर उपाध्याय जी को, अंकित पटेल जी को, संगीता जुनेजा जी को कि वो आकर हमारी तरफ से चरण शर्मा जी को मोमेंटो भेंट करें। उठा लें। जोरदार तालियां हो जाए चरण शर्मा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत ही गजब का मॉडरेशन था आपका, बहुत अच्छा मॉडरेट करा आपने ये कार्यक्रम और बहुत सारे पहलू हमारे सामने आए चरण जी की जिंदगी के।